Let's start. Starting with the name of Allah Subhanahu wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. So now we are going to discuss about the micrometry. What is micrometry? As the name indicates, the micro is mean small. So microorganisms, as you know, there are some microorganisms which we can only see under microscope. So for determination of their size, we use the method which is known as micrometry. So micrometry refers to the measurement of dimensions of desired microorganisms under a microscope. So हम उनका जो size है उसको भी microscope के अंदर ही determine करते हैं, as we can only see them through microscope, which uses two microscales. There are two microscales which are known as micrometers. At first, the diameter of the microscope field must be established with the help of micrometers. Then there are two types of micrometers. The first one that is present in eyepiece is known as the ocular micrometer. The second one is the stage micrometer that is present on the stage of the microscope. This is the diagram through which you can easily understand. Okay, this is the stage micrometer and this is the ocular micrometer that is present in eyepiece, and they both have scales, and through these scales we can determine the size of microorganisms. How? We can discuss later. So firstly, what is ocular micrometer? Ocular micrometer that is present in the eyepiece of the microscope is a glass disc that on which a series of uniformly spaced lines are present. So these lines on the stage micrometer are exactly 0.01 millimeter. So this is the ocular micrometer you can see in the diagram, and this is present in the eyepiece of the microscope. Then stage microscope. A stage microscope that is basically present on the stage on the slide of the microscope. A stage microscope is simply a microscope slide with a scale on its surface. So typical micrometer scale is 2 millimeter long, and the typical micrometer that we are using in our lab is actually 1 millimeter long. So suppose that a stage micrometer scale has deviance, means that 1 milliमीटर अगर वो लॉन्ग है, एक स्केल जो आपका स्टेज माइक्रोमीटर है उसका स्केल 1 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो उसकी जो मेन डिविजन्स होंगी वो 0.1 मिलीमीटर होंगी, और उसकी जो सब डिविजन्स होंगी दे आर एक्चुअली 0.01 मिलीमीटर. ओके, देन हम मैग्निफिकेशन की बात करते हैं. जब हम उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करते हैं माइक्रोस्कोप की, तो आपकी ऑक्यूलर स्केल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो स्टेज माइक्रोमीटर होता है उसका स्केल ज्यादा मैग्नीफाई हो जाता है. सो इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पे 4 डिफरेंट डायग्राम्स हैं आपके पास. फर्स्ट 5x पे इमेज ली गई है जिसमें वो जो है स्टेज माइक्रोमीटर उसका स्केल जो है मैग्नीफाइड फॉर्म में 25, इसी तरह 10x पे, देन 25 पे, और देन 40x पे. आप देख सकते हैं स्टेज माइक्रोमीटर का जो स्केल है वो ज्यादा मैग्नीफाई हो गया. उसके बाद दिस इज द एग्जैक्ट टॉपिक दैट इज द कैलिब्रेशन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म साइज. यानी हमने साइज को कैसे डिटरमिन करना है, जो हम माइक्रोमेट्री का बेसिक पर्पस है कि हमने साइज को डिटरमिन करना है. सो एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग इट्स साइज इन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर यूनिट्स. तो हमने स्केल की बात कर ली जिसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक यूनिट्स होते हैं. So these units are then converted into actual units by multiplying by calibration factor. Okay, then ocular micrometers are typically calibrated with a stage micrometer, and this is a standardized glass slide with an accurately ruled scale. So this is the eyepiece graticule, which is actually the ocular micrometer. Then this is the stage micrometer present on the slide of the microscope. So हम एक दो एग्जाम्पल्स समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट करना है साइज को. सो द करेक्ट वे टू कैलिब्रेट अ रेटिकल विद अ स्टेज माइक्रोमीटर इज टू लाइन अप द लेफ्ट एजेस ऑफ ईच. सो हम फर्स्टली जो हमारे पास ये यहाँ पे बताया गया है, जो एक स्केल दिया गया आपके पास एक डायग्राम है, हमने यहाँ से देखना है कि जो हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर है और जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उनकी कौन सी लाइंस आपस में फ्यूज कर रही हैं, कोइंसाइड्स कर रही हैं, यहाँ ज्वाइन कर रही हैं. हमने उन लाइंस के थ्रू जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का साइज जो है उसको मेजर करना है. अब किस तरह से करना है? फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जो है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर उसकी 6 डिवीजन स्टेज माइक्रोमीटर की 8 डिवीजन के साथ मैच कर रही है, तो हमने पहले बात कर ली है कि स्टेज माइक्रोमीटर के ऊपर
जो है 1 मिलीमीटर का वो पूरा होता है, और उसकी जो ईच मेन डिवीजन होती है वो 0 जो है 1 मिलीमीटर के बराबर होती है। ऐसा ही हो गया। अब 0.01 के, अब जो 8 डिवीजन की अगर हम बात करें, इट मींस दैट इट्स अ 0.08। सो 0.08 को उसी ऑक्यूलर डिवीजन से हमने डिवाइड कर देना है, और उसके बाद एज यू ऑल नो दैट 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। सो हमने क्या करना है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, देन यू गेट द आंसर, यू गेट द साइज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन हम उसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ऑक्यूलर डिवीजन के ऊपर 10 जो हमारे पास स्केल है, स्केल की जो 10 लाइन है वो कोइंसाइड कर रही है स्टेट डिवीजन की सेकंड लाइन के साथ। स्टेट डिवीजन 1 मिलीमीटर का है, उसके ऊपर एज मेन डिवीजन जो है वो 0.01 की है, और हमने कहा है सेकंड डिवीजन जो है वो 10 के साथ कोइंसाइड कर रही है। इट मींस दैट 2 किसके बराबर होगा, 0.02 के। इट मींस दैट स्टेज डिवीजन इज इक्वल टू 0.02। अब हमने क्या करना है, 0.02 को 10 से डिवाइड कर देना है, दिस इज 0.002। देन हमने ये भी डिस्कस कर लिया 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर। अब हम क्या करेंगे, 0.02 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, so then you get the answer. This is actually the size of microorganisms that we can calculate through micrometry. So that's all. अगर आपको कुछ ना समझ आए, आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, we can help out you. So thank you so much for your such watching time, and thank you so much.